Jai Hind students. Today we are going to do one question regarding profit and loss appropriation. Okay, now the question is which means 1/10 of the distributable profit is to be transferred to general reserve, which means कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा बचा हुआ प्रॉफिट सारे एप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो. क्लियर नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सम. Now you can see first how you will start the sum. Please be careful. Books of Lata and Mamta. Okay, journal entries. Again the format of journal entries will be the same. Date, particulars, LF, debit, credit, amount debit and amount credit. Now first entry will be to pay the interest on Mamta's loan, because interest on partner's loan is a charge against profit, and if it is a charge against profit, it means it will be shown in the profit and loss account. So the very first entry will be 2016 March 31, interest on Mamta's loan account debit to Mamta's loan account, being interest provided on Mamta's loan. First entry, is it clear? Now amount. How will you calculate the amount? I have done the working here. Workings. Mamta's loan is of rupees 80,000. Interest on loan will be 80,000 into 6 upon 100. Right? So the amount is 4,800. Next. Now first thing is you have debited interest on Mamta's loan account. Why? Because firm is paying the interest to Mamta. That is why it is expense for the firm, and all expenses are debited. Right? Now next entry, that is second entry, will be आपको 11th में मैंने पहले ही बता दिया था, all expenses, all incomes account are to be closed at the end of the financial year by transferring them to profit and loss account. Similarly here also, as this expense is a charge against profit, you have debited it. Now what you will do, you will transfer this account to profit and loss account because it is charge against profit. Again 31st March 2016, profit and loss account debit to interest on Mamta's loan account. The same amount 4,800. Interest on Mamta's loan account transferred to profit and loss account. Next. Now this is the second entry, was the closing of the account which you have opened, and the name of the account is interest on Mamta's loan account. Next, third entry will be for the transfer of net profit to the profit and loss appropriation account. नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. मार्च 31 को आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. राइट? बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ in the question, the amount of profit given was 2,26,440. yes, मगर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ये जो 4,800 का इंटरेस्ट ऑन ममताज़ लोन था उसको वो जो गिवन प्रॉफिट है बुक में उसमें से माइनस करेंगे, और फिर जो प्रॉफिट बचा है वो है हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो द प्रॉफिट दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन ममताज़ लोन इज़ 2,21,640. क्लियर? नेक्स्ट एंट्री March 31, interest on. Now we are going to start with our appropriations, the appropriations that are to be given to the partners. Interest on capital account debit to Lata's capital account to Mamta's capital account. Amount I am going to calculate. I have already calculated it. Let us see how will it be calculated. It is very simple. Lata's capital is 3 lakh. Yes, Lata's capital is 3 lakh and the interest on capital is 7% per annum. Yes, तो 3 लाख का 7% हो जाएगा आपका 21,000. Lata's capital account 21,000.
ममता को इंटरेस्ट उसके कैपिटल पे कितना मिलेगा? ममता का कैपिटल था 2 लाख, 2 लाख का 7% विल बी 14,000, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उनको दिया जाएगा। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, firm is giving this interest to partners, it is expense for the firm, so all expenses are debited। कहाँ पे देगी उनको? उनके कैपिटल अकाउंट में देगी, यानी कि कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे एंट्री में। 21,000 एंड 14,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया फर्म के लिए एक्सपेंस? 35,000 का। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 7% पर एनम। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो ओपन किया था उसको क्लोज करेंगे, मगर कहाँ पे ट्रांसफ़र करके? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। मार्च 31 अगेन द सेम डेट, और आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री विल बी 31st March. Now salary is also being given to Lata and the firm is giving this salary. Again the salary for the firm is expense, all expenses are debited, so your entry will be Lata's salary account debit to Lata's capital account 30,000। now amount कैसे आया है ये 30,000? being salary allowed to Lata at 2,500 पर month, यानी 2,500 इंटू 12 करेंगे हम तो 30,000 टोटल एनुअल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब ये फिर से ये एक्सपेंस का अकाउंट था लता सैलरी अकाउंट, इसको हमें क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करना है तो ट्रांसफ़र कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लता सैलरी अकाउंट 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स पार्टनर्स ने की है, यानी पार्टनर्स फर्म में से पैसा निकाल कर ले गए हैं, तो अब इंटरेस्ट पार्टनर्स पे करेंगे फर्म को, तो फर्म की ये इनकम हो गई, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अब फर्म कहाँ से लेगी ये इनकम? अपनी उनके कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। सो नाउ द एंट्री विल बी लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर हो गया? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट कैलकुलेट, हाउ विल वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? आई हैव शोन द कैलकुलेशन हेयर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लता की ड्राइंग्स कितनी है? 36,000 की, राइट? 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 8%, दैट इज 8/100 इंटू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू लेटर ऑन। अभी इतना समझ लीजिए कि जब टाइम पीरियड नहीं दिया गया है क्वेश्चन में कि ड्राइंग्स कौन सी डेट को की गई थी, जब टाइम पीरियड नहीं दिया है, इन सच अ केस ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस। क्लियर हो गया? और एवरेज बेसिस कहता है कि टाइम पीरियड को 6/12 ले लीजिए। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? ड्राइंग्स दैट इज़ 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 8/100 इंटू एवरेज बेसिस टाइम पीरियड है 6/12। ये कैलकुलेशन करके हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लता का 1,440। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ममता विल बी कैलकुलेटेड। ममताज ड्राइंग आर 48,000 इंटू 8/100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड दैट इज 6/12। ये कैलकुलेट करके आया 1,920। ठीक है, अब हमने एंट्री तो ये समझ ली थी, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने उनके कैपिटल अकाउंट के आगे उनकी ड्राइंग्स का अमाउंट लिखा, दोनों ड्राइंग्स को प्लस किया और टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के आगे लिख दिया टोटल अमाउंट। इज इट क्लियर? और नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम थी, आपने क्रेडिट किया था, अब इनकम है तो इसे क्लोज भी करना पड़ेगा अकाउंट को।
क्लोज करने के लिए हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट वही पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 3360। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने सारे एप्रोप्रिएशंस कर लिया, अब क्या रह गया है हमारा, जनरल रिजर्व क्रिएट करना रह गया है। जनरल रिजर्व के लिए क्या कहा गया था, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल यानी डिविजिबल प्रॉफिट है क्या, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था 2,21,640 का, यस, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट में आपने कुछ एप्रोप्रिएशंस, आपने मीन्स फर्म ने कुछ एप्रोप्रिएशंस दिए थे, यानी फर्म के पास से पैसा गया था, ठीक है, और कुछ एप्रोप्रिएशंस लिए थे, कुछ चीज़ें ली थी पार्टनर से। जो चीज़ें फर्म ने पार्टनर से ली वो उसकी इनकम थी, इस प्रॉफिट में प्लस कर दिया, और वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दिया क्या क्या था फर्म ने दिया था एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इसलिए वो माइनस कर दिया। आपने जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लेकर आए थे आप एप्रोप्रिएशन में से, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया। फर्म ने सैलरी दी थी, वो भी माइनस कर दी, ठीक है। तो सब कुछ प्लस माइनस करके आपका डिविजिबल प्रॉफिट यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 1,60,000 का। 1,60,000 का 1/10 ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल रिजर्व में, यानी कि 16,000, ठीक है। 16,000 आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी एंट्री होगी 31 मार्च को ही, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 16,000, क्लियर, बीइंग 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी, अब कुछ प्रॉफिट हमारे पास अब भी बच रहा है, जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे दिया जाएगा वो, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लताज कैपिटल अकाउंट टू ममताज कैपिटल अकाउंट। Students, please keep this in mind. If there is profit in the appropriation account, in such a case, profit and loss appropriation account will be debited and capital accounts will be credited. ठीक है. Now we have to calculate the remaining profit. Remaining profit means जो divisible profit था, यानी 1,60,000 का, ठीक है, उसमें से आपने जनरल रिजर्व भी बना दिया 16,000 का। अब रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रॉफिट जो कि बचा हुआ है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाना है। 1,60,000 माइनस 16,000, कौन सा 16,000, जनरल रिजर्व का 16,000, यानी अब बचा हुआ प्रॉफिट है 1,44,000 का। लता और ममता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 70:30, 0 कैंसिल किया, 7:3। लता का प्रॉफिट क्या होगा, 1,44,000 यानी रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू लता का शेयर 7 है, इंटू 7/10। ये डिनोमिनेटर 10 कैसे आया है, 7 + 3 10, ठीक है। तो टोटल शेयर कितना बैठ रहा है 10, जिसमें से उसको कितना मिलेगा लता को 7, तो 1,44,000 इंटू 7/10, it comes 1,08,000. Now Mamta's profit, share of profit will be 1,44,000 into ममता का 3 था, 3/10, 43,200। और एंट्री आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही। अमाउंट आप लिखेंगे लता के कैपिटल अकाउंट के आगे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ममता के कैपिटल अकाउंट के आगे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों को प्लस किया, टोटल remaining profit in front is to be written in front of profit and loss appropriation account, which is debited in this entry. In the narration you will write divisible profit transferred to partners capital account in PSR, means profit sharing ratio. Now is it clear students? This is all for Friday.